Hello student, welcome back to another video of St. Michael's Academy e-learning class. I am Sriram teaching you accountancy of class 11th. My dear student, we are studying our chapter theory base of accounting. So today we are going to discuss our fundamental accounting assumptions, and these are going concern assumption, consistency assumption and accrual assumption. So let's start. Going concern assumption. What is going concern assumption? According to this assumption, it is assured that businesses shall continue for a foreseeable period and there is no intention to close the business or scale down its operations significantly. This implies that it will not be dissolved in the immediate future unless there is a clear evidence of closure. It is because of this concept that a distinction is made between a capital expenditure, that is expenditure that will give benefit for a long period, and revenue expenditure, that is one whose benefit will be consumed or exhausted within the accounting period. माय डियर स्टूडेंट, गोइंग कंसर्न ये बताता है कि जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, हमने देखा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं. अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक सेट ऑफ रूल्स है जिसे फॉलो करके अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं. सो गोइंग कंसर्न जो अजम्पशन है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन है, या आप बोल सकते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ये क्या है? ये हमें बताता है कि हम कोई भी बिजनेस जो करते हैं वो फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम करते हैं, दीर्घकालीन के लिए, मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए हम ये करते हैं. ये इस बात पे आधारित है कि जो भी हमारा बिजनेस है, जो भी हमारा व्यापार है, वो कंटिन्यू निरंतर चालू रहेगा जब तक बिजनेस जो भी हमारा व्यापार है वो दिवालिया नहीं हो जाता है या बिजनेस हमारे क्लोज़र के स्थिति में नहीं आता है. इट मीन्स व्यापार समापन की स्थिति में नहीं आ जाता है. तो इस अवधारणा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन, हम ये मानते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो अनिश्चित काल, इट मीन्स फॉर इंडेफिनिट टाइम तक ये हमारा कार्य करेगा. दिस इज आवर गोइंग कंसर्न एजम्पशन. सो आई होप ये आपने समझ लिया स्टूडेंट. गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या है? हम बोल सकते हैं एज पर दिस एजम्पशन द बिजनेस विल एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग एंड इनडेफिनिट पीरियड एंड ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ गोइंग कंसर्न व्यू. हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं, अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं. ये जो हमारा गोइंग कंसर्न है, इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिस्टिंक्शन करते हैं बिटवीन द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हमने देखा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंडिचर को बोलते हैं जिसका बेनिफिट हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में मिलता है, और हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंसेस को बोलते हैं जो हमारे लिए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, जो विद इन अकाउंटिंग पीरियड जिसके बेनिफिट हम अवेल करते हैं, वह है हमारा revenue expenditure. Now, consistency assumption. According to the consistency assumption, accounting practices once selected and adopted should be applied consistently year after year. The concept helps in better understanding of accounting information and makes it comparable with that of previous years. Consistency eliminates personal bias and helps in achieving results that are comparable. The concept is particularly important when alternative accounting practices are equally acceptable. For example, two methods of charging depreciation, written down value method and straight line method, are equally acceptable. Under the assumption, method once chosen and applied should be applied consistently year after year. But it doesn't mean that practice once adopted cannot be changed. The accounting practice may be changed if the law or accounting standard requires it, or the change will result in more meaningful presentation. If an enterprise desires to adopt an alternative practice, it must disclose the change and its impact on the profit or loss. सो कंसिस्टेंसी एजम्पशन क्या कहता है? कंसिस्टेंसी एजम्पशन कहता है कि जो हमने एक रूल्स, जो हमने एक प्रिंसिपल्स फॉलो की है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए,
वो सेम रूल, सेम अजम्पशन, सेम जो हमारे प्रिंसिपल्स थे, कॉन्सेप्ट थे, वही हम क्या करते हैं साल दर साल, हर अगले साल उसी चीज़ को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, प्रैक्टिस में करते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा, हमें कंपेयर करने में फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू अनदर अकाउंटिंग पीरियड में के जो भी हमारा फिनेंशियल इंफॉर्मेशन आता है उसे कंपेयर करने में हमें क्या होता है, ईजी होता है। So we can say that the assumption of consistency, refers to the state of accounting rules, concepts, principles, practices and conventions being observed and applied constantly, that is from one year to another. There should not be any changes. If consistency is there, the results and performance of one period can be compared easily and meaningfully with the other period. हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर करके फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू अनदर अकाउंटिंग पीरियड के परफॉर्मेंस को हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया कि जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हमारे पास दो मेथड अवेलेबल हैं, दैट इज WDV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, एंड अनदर इज SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। सो दो अल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल हैं, हम दोनों में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। तो हमने जो चूज़ किया से एज WDV, तो WDV मेथड को ही हम अगेन ईयर बाय ईयर हम क्या करेंगे, उसे यूज़ करेंगे। और यदि हमें चेंज करने की आवश्यकता पड़ी, इफ़ देर इज़ अ नीड ऑफ चेंज इन द प्रिंसिपल्स, देन वी कैन चेंज। हमने जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं, अगर उसको चेंज करने की आवश्यकता पड़ी तो वी कैन चेंज। और चेंज करेंगे तो क्यों चेंज करेंगे, बिकॉज उससे हमें क्या हो रहा है, उससे हमें बेटर रिजल्ट्स मिलने की संभावना होती है। सो दैट्स वाई वी कैन चेंज द मेथड दैट says the consistency assumption. Okay student, so now next जो हम देखेंगे that will be our accrual concept. So क्या होता है accrual concept, let's see. Accrual assumption. According to the accrual assumption, a transaction is recorded in the books of account at the time when it is entered into and not when the settlement takes place. Thus revenue is recognized when it is realized, that is when sale is complete or service are rendered. It is immaterial whether cash is received or not. Similarly, expenses are recognized as expenses in the accounting period in which the revenue related to it is recognized, whether paid in cash or not. The concept is particularly important because it recognizes the assets, liabilities, incomes and expenses as and when transactions relating to it are entered into. Under this concept, profit is regarded as earned at the time the goods or services are sold or rendered to a customer. That is, the legal title is passed to the customer, who in turn has an obligation to pay for them. Similarly, expense is regarded as incurred when the goods or services are purchased or availed and an obligation to pay for them is assumed. So according to the accrual assumption, ये जो हमारा accrual assumption है वो बोलता है कि जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, वेदर हमने बेनिफिट ले लिया है या हम लेने वाले हैं, या जो हमने सर्विस प्रोवाइड कर दिया, तो वॉटेवर जो सर्विस हमने दिया या हमने जो बेनिफिट अवेल कर लिया, उसके लिए हमको पैसा मिला या हमने पैसा दिया, तो ये तो एक हम रिकॉर्ड करते ही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ऐसे भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो हम बेसिकली सपोज करते हैं कि हमने क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर लिया। सो क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर लिया तो वो हमारा उस पर्टिकुलर ईयर, वो उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होता है, तो वो हम उसे भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करते हैं। Accrual assumption simply states that whether हमने कैश पे किया हो या ना किया हो, लेकिन हमने उसका बेनिफिट अवेल कर लिया, उसे भी हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करते हैं, जिससे हमारा जो एक लास्ट में एट द एंड ऑफ द पीरियड हम क्या पता कर सके कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट या जो भी हमें नेट प्रॉफिट हो रहा है वो क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि हमने ट्रांजेक्शन किया, हमारे ट्रांजेक्शन से पता चलता है कि हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो है 5 लाख रुपीज़, दैट इज़ 5 लाख रुपीज़, और जो हमने एक्सपेंसेस किए वो किए
यू कैन से एज 1 लाख रुपीज़। माय डियर स्टूडेंट, इस एग्जांपल को अच्छे से समझेंगे। सपोज करते हैं कि हमने जो टोटल मेरा रेवेन्यू जनरेट हुआ दैट इज़ 5 लाख रुपीज़। हमने 5 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया। अब टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ 5 लाख और हमने शो करना है कि मेरा जो एक्सपेंस है दैट इज़ ऑफ 1 लाख। सो एट द एंड हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा इनकम क्या हुआ दैट इज़ 4 लाख। इट्स वेरी सिंपल। बट ऑन द अदर हैंड हमें ये भी पता चलता है कि अभी हमने कुछ ऐसे अमाउंट थे जो हमने पे नहीं किए। फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं हमको रेंट अपने ऑफिस का पे करना था दैट इज़ 60,000 पर एनम। 60,000 पर एनम। आउट ऑफ 60,000 ओनली हमने 40,000 ही पे कर रखा है। ओनली 40,000 पे कर रखा है। इट मीन्स स्टिल हमें 20,000 पे करने हैं। सो अकॉर्डिंग टू द अक्रूरल एजम्पशन हमने जो बेनिफिट तो अवेल कर लिया। हमने रेंट जो हमने बिल्डिंग ले रखा है, जो वो रेंट हम उसमें रह रहे हैं या बिजनेस हम उसमें कंटिन्यू कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। सो हमने तो उसका बेनिफिट अवेल कर लिया, लेकिन हमने उसका भी पेमेंट नहीं किया है। दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। 20,000 इज़ आउटस्टैंडिंग। सो एज पर द अक्रूरल एजम्पशन ये जो 20,000 आउटस्टैंडिंग है उसे भी हम क्या करेंगे, इस अकाउंटिंग पीरियड का ही एक्सपेंस मानते हैं और उसे हम क्या करेंगे, अपने एक्सपेंस में उसे हम ऐड कर लेंगे। सो इट मीन्स अर्लियर हमें क्या पता चल रहा था दैट हमें जो प्रॉफिट हो रहा था यू कैन से एज 4 लाख हो रहा था। बट नाउ अब मुझे जो 20,000 जो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रह गया उसे भी हम माइनस करेंगे। इट मीन्स एट द एंड हमें पता चलेगा कि जो हमें प्रॉफिट हो रहा है दैट इज़ 3,80,000। ओके। सो एक्रूरल एजम्पशन के अकॉर्डिंग क्या है, एक्रूरल बेसिस क्या कहता है कि जो भी हमने एक्सपेंस किए या जो भी हमने इनकम अर्न किया, वेदर उसका बेनिफिट हमको मीन्स सामने वाले पार्टी ने कैश में पेमेंट किया हो या ना किया हो, लेकिन हमने तो अपने सर्विस रेंडर कर दिए। सो दैट इज़ आवर एक्रूरल अजम्पशन। सो एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो हमारे बुक में गिवन है। लेट अस टेक एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड द एक्रूरल कॉन्सेप्ट। MS RSM and Company purchases computers on 1st January 2018 amounting to rupees 5 lakh to be paid on 15th April 2018। क्या है एग्जाम्पल में गिवन कि जो RSM एक कंपनी है, RSM एंड कंपनी है, उसने 1 जनवरी 2018 को कंप्यूटर परचेज किया दैट इज़ ऑफ 5 लाख। बट जो उसका अमाउंट पे करना है दैट इज़ ऑन 15th of April 2018। Since the asset has been acquired by the enterprise and has in the process incurred a liability to the extent of that amount on 1st January 2018, it must record the transaction in its books of account on 1st January 2018। चूँकि यहाँ पे जो 5 लाख का ट्रांजेक्शन है दैट इज़ ऑन क्रेडिट, सो वो अपने लाइबिलिटीज़ को भी क्या करेंगे, बढ़ाएगा, क्योंकि उसका एक लाइबिलिटी 5 लाख से बढ़ गया। The transaction on recording shall reflect that the enterprises owns assets worth rupees 5 lakh and also owes an equal amount of money to the supplier। एक तो उसका assets बढ़ा that is of rupees 5 lakh, on the same time उसका एक liability भी बढ़ गया of 5 lakh। सो ये है हमारा accrual basis और accrual concept। Similarly, if MS RSM and Company makes a sale of goods to MS VS and Company on 27th February 2018 for rupees 15,000 ऑन क्रेडिट ऑफ 2 months। क्या कहा है कि यही कंपनी RSM एंड कंपनी ने 27 फरवरी को VS एंड कंपनी को 15,000 रुपीज़ के गुड्स को सोल्ड आउट किया है, वो भी ऑन क्रेडिट। द सेल मस्ट बी रिकॉर्डेड ऑन 27 फरवरी। सेल जिस दिन हुआ उस दिन रिकॉर्ड हो गया। ऑल्दो द अमाउंट विल बी रिसीव्ड ऑन 27 अप्रैल 2018। द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड बिकॉज द रेवेन्यू हैज़ बीन अर्न। जो उससे जो पैसा प्राप्त होना था वो तो हमने 27 को ही अर्न कर लिया। द अमाउंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड येट, लेकिन अभी तक हमें उसका अमाउंट नहीं मिला है। ऑन द अदर हैंड MS VS एंड कंपनी शुड ऑल्सो रिकॉर्ड द परचेज इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 27 फरवरी 2018 बिकॉज गुड्स हैव बीन परचेज ऑल्दो द अमाउंट हैज़ नॉट बीन पेड। तो यहाँ पे भले ही पैसा नहीं दिया गया हो लेकिन असेट्स तो अक्वायर कर लिया गया। सो दैट्स वाई इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी कि जो VS एंड कंपनी है उसने क्या किया, अपने भी बुक्स ऑफ अकाउंट में परचेज का एंट्री उसने किया
दैट इज़ ऑन क्रेडिट परचेज। ऑन द अदर हैंड जो RSM एंड कंपनी है इसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री किया सेल का, दैट इज क्रेडिट सेल। तो दिस इज आवर accrual assumption। सो सिंपली आप क्या कह सकते हैं, accrual assumption को अगर आप डिफरेंट वर्ड में डिफाइन करना चाहें देन यू कैन डिफाइन इट एज अकॉर्डिंग टू दिस assumption the revenue is recognized on its realization and not on its actual receipt. Similarly, the costs are recognized when they are incurred and not when payment is made. This assumption makes it necessary to make certain adjustments in the preparation of income statement regarding revenues and costs. In accrual assumption, revenue is recorded when sales are made or services are rendered, and it is immaterial whether cash is received or not. All the expenses and incomes relating to the accounting period are recorded, whether actual cash has been paid or received or not. It is necessary to adopt and follow this assumption to ascertain the true amount of profit or loss for the accounting period. एज मैंने बताया पहले कि ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें एक सही फिगर पता चले कि हमारा प्रॉफिट क्या हुआ या लॉस क्या हुआ। सो एंड अनदर नेम फॉर द एक्रूअल कॉन्सेप्ट इज मैचिंग कंसेप्ट। ओके स्टूडेंट, सो आई होप ये आज के वीडियो सेशन में आपको ये बात समझ में आई होगी। इफ़ यू आर हैविंग एनी टाइप ऑफ डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो अगले वीडियो सेशन में हम अपने नेक्स्ट अकाउंटिंग अजम्पशंस, नेक्स्ट जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उसे हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो टिल देन हैव अ गुड डे।